Good morning, everyone. Yes, Vani, beta. What do you want to say? Please unmute yourself. Vani Anand, 9G. Good morning, sir. Good So morning. your voice is very low. Okay. Yes, Pragati, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Sir, actually you said that you will send the marks on email, but you have not sent. I didn't receive marks. Beta, I have sent on your number, I think. Around number I received, but I want to just check that in which question I have lose the marks. Okay, beta, I will send today. I will send. Okay, sir. एक मुझे मैसेज सेंड कर देना, ठीक है, ताकि मैं Okay, फिर sir. से ना भूल जाऊं. So let us start your work now. हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटा. अच्छा, एक तो बेटा टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. देयर आर ओनली 3 चैप्टर्स इन योर सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4. ठीक है, एज यू नो. एंड आदर्श बेटा एंड दमनप्रीत 9E, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा. ओके, तो बेटा इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों को पता है कि ओनली 3 मॉडल्स आर देयर, and then electronic configuration, and then Bohr-Bury rule, and then come to electronic configuration, and after that isotope, isobar, atomic number and mass number. यही कुछ है उसमें. कहने को तो बिल्कुल थोड़ा सा चैप्टर है, लेकिन इसको आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा. अब बेटा इसके लिए देखो, अभी हमारा जो है वो सिलेबस खत्म हो चुका है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि वेन एवर आई विल आस्क द क्वेश्चन यू विल नॉट ओपन योर बुक्स एज वेल एज योर नोटबुक्स. ठीक है. अक्षय कुमार राणा, प्लीज सिट बेटा. हाँ, यस. ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी कभी आंसर देना है तो यू विल नॉट ओपन योर बुक्स एज वेल एज योर नोटबुक्स. आज तो चलो मैंने आपको बताया नहीं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को मैं टॉपिक जो है आपके लिंक के साथ ही भेजा करूंगा, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक्स, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन प्लीज टेल. एंड बेटा दिस इज तजेश्वर मनहास. मेरी आवाज आ रही बेटा आप तक? तजेश्वर, तजेश्वर बेटा आपने मुझे अपने नंबर से मैसेज करना है, मैंने आपसे बात करनी है. ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे मेरे नंबर पे मैसेज सेंड कर देना. एक्चुअली मेरे पास जो नंबर है वो आपका मिल नहीं रहा, तो मैंने कल भी ट्राई किया था लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया. तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सेंड अ मैसेज सो दैट आई कैन कांटेक्ट यू. अच्छा, तो देखो बेटा सबसे पहले मॉडल से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द नुपुर शर्मा फ्रॉम 9G. यस नुपुर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Good morning, sir. Good morning, beta. Beta, first of all, tell me about the models of Thomson model Yes. of an atom. Can you please tell something? Yes, sir. Thomson model was based on his imagination only. Plum pudding model is the name of the model, in which we can compare this model with the watermelon also by taking that red part as positive electrons and the seeds over it embedded negative electrons. Okay. But the limitation of this model was that it could not explain the experiment of Rutherford, which was the gold foil experiment, alpha particles experiment. Then Okay. we have the model of Rutherford, in which we have, sir, हाँ जी, please continue. can you hear me? Yes, beta, please continue. Yes, sir. Yes, sir. We have Rutherford model, in which there is that he said that the positive charge is embedded in the nucleus. When he discovered the term nucleus for the atoms also, and he said that the electrons they move in a circular shape around the positive nucleus, and Okay. then its limitation was that Bohr explained further that if it is revolving around it, then a time will come when its energy will be finished and it will crash into the nucleus, which will make atom quite unstable. But we know that atoms are stable. Then it Okay. was Bohr's model. He explained that there is But wait. Okay. nucleus, and then Okay, beta, wait. ठीक है, thank you so much. So next come to the Rosalind 9C. Rosalind, can I ask one question from you?
Rosaline? Okay. Okay, Harjot Kaur beta. Please unmute yourself. Good morning, sir. Good morning beta. अच्छा देखो, please tell me about the limitations of Rutherford as well as Thomson model. Yes, so first of all, about the Thomson model, he told that the protons are in the sphere, but it is wrong that because the Rutherford model told that the protons are in the center of and in the nucleus, and it could not explain the stability. And also the Rutherford model, it could also not explain the stability of an atom, because he told that the electrons are revolving around the nucleus, but and they exhibit energy, but if they exhibit energy, they would be continuously moving, and after some time they would fall in the nucleus. So Bohr said that they do not exhibit energy. So Okay, this beta. was the limitation. Thank you so much. हाँ जी, युवराज बेटा. Good morning, sir. Good morning beta. Beta, there is a question in the Rutherford model. Most of the rays are passed away. Beta, why the rays will be passed from there? वहां से rays pass क्यों हो जाती हैं? What is the reason behind it? Sir, because they don't strike with the gold foil. But what is the basic reason? What do you think? Okay, no problem. Next, come to the. Nucleus. अच्छा, गुरमन. हाँ जी, गुरमन बेटा. Yes, please. Sir, Yes. sir, this is because the positive charge, it is concentrated in very small amount, and most of the space inside the atom is empty. So they pass away. बेसिक रीजन यही है कि वहां पे उसका स्पेस एम्प्टी रह जाता है. दैट्स व्हाई. ओके, कम टू द अर्णव महाजन 9G. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. अच्छा, now please tell me beta, few of the rays that has been deflected by a small angle as well as a large angle. Why? Sir, because positive charge is there at the center of the every atom. Due to the positive charge, the rays are deflected. Okay. Now please tell me what is the conclusion of Rutherford model of an atom? Conclusion. Conclusion. देखो, जब आप लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसने दिया हुआ अल्फा रेज के बारे में. सेकंड थिंग ही हैज गिवन नेक्स्ट बेटा ऑब्जर्वेशन. देन इसके बाद फिर से ऑब्जर्वेशन बताइए कि व्हाई इज इट हैपनिंग. इन द लास्ट वन दे हैव गिवन कंक्लूजन ऑफ द मॉडल. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. इसको थोड़ा रीड करना है. ठीक, हाँ, यस बताओ. Sir, its conclusion is that that positive charge is there at the center of an atom. That's nucleus. That's first point, and other that it revolves in a particular path around the nucleus. Okay. Electrons. Okay. And sir, the size of the nucleus is very small. Okay. As compared to other. ठीक है, राइट. हाँ जी, हरजोतदीप सिंह. Harjotdeep Singh, please unmute yourself. Harjot. Okay, इनकी शायद साउंड नहीं आ रही. अभिषेक 9G. Abhishek 9G बेटा, please unmute yourself. Good morning, sir. Good morning बेटा. Abhishek बेटा, please tell me about the Bohr model of an atom. Sir, Bohr model. Yes बेटा. Hello, sir. हाँ जी बेटा, बोहर मॉडल. Sir, according to the Bohr model, according to the Bohr model, okay, no problem. A nucleus surrounded by the electrons, similar like the solar system. Similar like the solar system. What are the observations given by the Bohr model? I just want to ask only simple question.
उसने बोला क्या, बस सिंपल 2 लाइंस में बता दो मेरे को कि ये बातें बोली हैं उसने। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट आस्था, 1 मिनट। काफी नए बच्चे आए, अब उनसे बात करनी है मेरे को आज। जसप्रीत कौर 9C, जसप्रीत कौर 9C, प्लीज अनम्यूट बेटा। Yes, Jaspreet, please speak something about the Bohr model. Chalo, no problem. Yes, beta, Taranpreet Kaur from 9B. Harjot Kaur. Okay, beta, I'm coming. हाँ जी बेटा, Bohr model. Sir, Bohr model says that electrons, they revolve around certain special orbits, and while revolving around these orbits, electrons, they do not radiate energy. Okay. And these orbits, they are known as shells, and they are represented by K, L, M, N. Okay, no problem. Acha, now come to the Navraj Singh. Can you better speak something? Navraj. Okay. हाँ जी, उर्वेश डोगरा 9F. Please unmute yourself. Good morning, sir. Good morning, beta. Beta, can you please tell me why Rutherford model used the gold foil instead of other metal? Sir, because the gold foil is the because the gold foil is the हाँ जी बेटा बताओ। is more reflected, is more comfortable to use in the activity to reflect the lights, but the but the experiment was totally different. The light was passed through them, the most of the light pass through them. थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट हल्का सा गलत हो गया। युवराज बेटा प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। हाँ जी जसकीरत, एक मिनट को मंजोत से पूछते हैं पहले। हाँ जी मंजोत, आप बताओ। Because the gold foil is as thick as possible, it is 1000 atoms thin. It is 1000. Beta, why we are using gold instead of iron and any other metal? What because, is this? Because it is a thin layer. And it is the gold foil was about, and it is about 1000 atoms thin. हाँ वो भी ठीक है, लेकिन what is the basic reason? Okay, ठीक है ठीक है। गुरपाहुल बेटा, गुरपाहुल 9D। Yes sir. हाँ जी बेटा, can you please tell why they have used only gold foil instead of other metal? Sir, I don't know. Okay, okay, no problem. हाँ जी आस्था, please unmute. Good morning, sir. Good morning, beta. So the first reason was that during the experiment he wanted as thin layer as possible, and gold foil was 1000 layer thick. And the other reasons can be that he chose it because he wanted to see that how the alpha particles scattered at the different angles using the gold foil. Okay, ठीक है। तो इसमें वो देखना चाहता था कि कितने एंगल वहां बनते हैं, कितना ये आगे स्कैटर कर सकती है, पूरी चीजें इसी के बेस पे बनती हैं। अच्छा, नेक्स्ट कम टू द बेटा करणबीर 9E, करणबीर कौर, प्लीज बेटा अनम्यूट। Yes sir. हाँ बेटा, एक्सप्लेन बोहरबरी रूल। The Bohr-Bari rules were that the maximum number of electrons present in the shell is given by the formula 2n square.
And the other rule was that in the outermost layer of shell, maximum of 8 electrons can be there. And the inner layer must have the innermost layer must have at least 2 electrons, and the filling up of electrons in the shell must be in a systematical order. Okay. Next come to the Loveleen Kaur. Beta, can you repeat once? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Beta. Sir, Bohr-Bury rule says that we can find the number of electrons in a shell by the formula 2n square. And the second rule is that the outermost shell can accommodate maximum of 8 electrons. And the third is that we will fill the number of electrons in a stepwise manner. Okay, right. And okay, beta. Thank you very much. Shabnam, beta. Shabnam from 9F. Shabnam is here. Shabnam, grade 9F is here. हाँ जी वरुण, आप बताओ बेटा. वरुण 9A. Yes, sir. Beta, which model is known as nuclear model of an atom? Sir, Rutherford's model of an atom. Why, beta? क्यों बोलते हैं? वरुण, मेरी आवाज आ रही बेटा आपके तक? ओके ओके बेटा. जय अक्षरपीत. अक्षरपीत, प्लीज अनम्यूट. Yes, sir. हाँ जी बेटा, बताओ मुझे. Why it is known as Sir, can you nuclear? please, sir, can you please repeat the question? बेटा, which model is known as nuclear model of an atom and why? Sir, Thomson's model is known as nuclear model of an atom. Beta, it's wrong. Okay, Asta, I'm coming. Okay, Abhijot Singh. Good morning, sir. Good morning, beta. Sir, Rutherford model is known as the nuclear model of an atom. The reason is because in his activity he discovered that there is a part in middle of an atom that deflects all the alpha particles, that is called a nucleus. And with this activity he discovered the nucleus of an atom. Okay. So it is called nuclear model of atom. ठीक है ठीक है. देखो, रदरफोर्ड मॉडल को ही हम लोग न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम बोलते हैं. थॉमसन मॉडल को नहीं बोलते बेटा. थॉमसन मॉडल को सिंपल वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, ये प्लम-बर्डिंग मॉडल बोलते हैं, रेस्ट नथिंग. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द वाणी आनंद फ्रॉम 9G. हाँ जसके 2 मिनट आ रहा हूँ आपके पास. हाँ जी बेटा. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द बोर-बुरी रूल once again? Bohr-Bury rule. He explained that there are only certain special orbits inside Listen. I am only talking about Bohr-Bury. Bohr-Bury rules. Okay. हाँ. The maximum number of electrons that can be accommodated in the atom is founded by the formula 2n square. Okay. Is that there can be only 8 electrons in the orbits that are present, and in order to fill the inner shell of the atom, there should be followed a systematical order. Okay. अच्छा ठीक है बेटा. थोड़ा सा एक बात का बेटा ध्यान रखो कि नेक्स्ट टाइम से जब आपकी क्लास लगेगी तो आप लोगों की बुक्स ओपन ना हो. ठीक है. क्वेश्चन आए ना आए, नो प्रॉब्लम. यहाँ कौन सी किसी को मैं बेइज्जती कर रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ. कोशिश करनी है कि हमने अपनी मर्जी से आंसर देना है. चीटिंग कर, अभी आपको लगता है कि किताबें मेरे आसपास पड़ी हैं, मुझे यहाँ से दिखाई दे रही. बेटा सब कुछ नज़र आता है. हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बच्चे देखते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आपने ईमानदारी से आंसर देना है. ठीक है. होनेस्टी से आंसर देना, तभी आपका भी प्रॉफिट है. क्योंकि आगे जाके जब आप लोग ग्रेड 10 में जाओगे वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम आएगी.
इस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग किताब खोल के आंसर दे लेते हैं। मैं एक बच्चे को, मैं सभी को बोल रहा हूँ, ऐसा मत कहना कि हाँ भी मेरे को बोला, मैं सभी से बात कर रहा हूँ कि कोशिश करनी है कि आपने आंसर जो है अपनी इच्छा से देना है, जो आपको आता है आप उसको रीड करो। नेक्स्ट टाइम जब आपका कोई भी टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों को उसमें एडवांस में बता दूंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना है ताकि आप लोग उसको अपनी मर्जी से आंसर दे सको। अभी भी मैंने मैक्सिमम बच्चों से क्वेश्चन पूछा है तो उसमें मुझे लगता है कि अराउंड 80% बच्चों ने मुझे जवाब जो है वो किताब से देख के दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला आज, क्योंकि मैंने आपको एडवांस में नहीं बताया था। प्लीज़ कोशिश करो कि अपना आंसर खुद दो, किताब खोल के आंसर नहीं देना है। नहीं आता है नो प्रॉब्लम, पूछो 10 बार पूछो, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट आपने जो आंसर देना है अपनी मर्जी से देना है और बिना देखे देना है। कोशिश करना नेक्स्ट टाइम, बड़ा आसान लगता है क्योंकि बड़े दिन हो गए ना हम लोगों को घर में बैठे बैठे किताबों से सहारा लेते हुए। अभी टाइम आ चुका है कि आपको जो चीज़ें लर्न है आप मेरे को सामने बोलो कि ये इसका आंसर है। हाँ जी बेटा, अक्षय कुमार आना, कोई माइंड ना करे कि हाँ भी मैंने मेरे से पूछा तो ऐसे बोला, सभी से बात हो रही है। हाँ यस बेटा गुरमन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू। सर आई हैड अ डाउट। हाँ सर इन रदरफोर्ड्स मॉडल सर उसमें हमने लेड बॉक्स क्यों यूज किया? लेड बॉक्स बेटा, अभी तो लेड बॉक्स तो जाके +1 में यूज करता है वो, इस बार तो उसने सिंपल न्यूक्लियस से यूज किया है। लेड बॉक्स वहां से वो अल्फा रेस को वहां से पास करता है वो। जैसे लेड जो है, लेड एक मतलब ब्लैकिश कलर का एक सब्सटेंस होता है, वहां से जब रेज वहां से निकल के जा रही हैं तो वो उसको पता लग रहा है कि वो कितनी रेस को वहां से छोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ जी बेटा आप बोलो हरजोत। अच्छा एक बात और थी बेटा, जब हरजोत 1 मिनट में फिर भूल जाऊंगा। देखो ऐसा है कि अगर आप लोगों को नंबर नहीं मिले हैं साइंस के, आइदर इन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पोर्शन, किसी में भी आपको लग रहा है कि डाउट है और मुझे नहीं बताया गया, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे, या आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो उनको एक मैसेज कर दो, बायो में प्रॉब्लम है तो उनको एक मैसेज कर दो। आज शाम तक जितने बच्चों के डाउट्स हैं हमारे फोन पे पहुंच जाने चाहिए। हम लोग आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे विद इन 1, 2 और 3 डेज। अभी भी मैं कांटेक्ट कर ही रहा हूं सबके साथ, लेकिन एक साथ क्वेरीज भेज दो, क्योंकि ये अभी जो पेपर होते हैं क्वेश्चन जो हम चेक करते थे पेन से, उसमें क्या है चलो जितनी मर्जी बार ओपन कर लिया, अब इसमें बार बार लैपटॉप ओपन करो और लैपटॉप के बाद फिर बताओ कि हाँ भी सेट कौन सा है। उसमें ढूंढने में कई बार नेटवर्क होता है, कई बार नहीं होता, तो प्रॉब्लम आती है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज, जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप मेरे नंबर पे, या फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो फिजिक्स वालों को सेंड कर दो, बायो में है तो बायो को वालों को सेंड कर दो, ठीक है। तभी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, नहीं तो ये तो चला रहेगा पूरा साल ऐसे ही। अभी हमने एक एग्जाम और भी लेना है आपका, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर क्वेरीज ऑन माय नंबर। उर्वेश डोगरा 9F। हाँ जी बेटा बोलो। हरजोत कौर। yes sir, I wanted to ask that अगर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में गोल्ड के अलावा कोई और फॉइल ली होती, कोई और मेटल की फॉइल ली होती तो क्या होता फिर? अच्छा आप बताओ, अभी जैसे गोल्ड फाइल ली है, गोल्ड फाइल जैसे उन्होंने बता दिया है कि एक बड़ी थिन एक फाइल होती है, इसमें अगर हम कोई लाइट जहाँ से छोड़ते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे वो शाइन करता हुआ नजर आता है कि वहाँ पे कोई लाइट वहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। सपोज मैं वहाँ पे एक उसकी फाइल लेता हूँ आयरन की। जब मैं आयरन की फाइल लेता हूँ तो बेटा आयरन की फाइल के ऊपर जब लाइट पड़ती है क्या कभी रिफ्लेक्ट करती है या डिफ्लेक्ट करती है? लाइट वहाँ पड़ेगी जो चमकदार चीजें होती हैं, उसी के ऊपर पड़ने के बाद आगे डिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन शो करती हैं। अगर हम लोग कोई ऐसी मेटल यूज कर लेंगे जहां पर उसकी लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट ही ना करे, फिर तो कोई फायदा कोई नहीं। तो उसके एक्सपेरिमेंट का मीनिंग यही था कि अगर कोई लाइट उसके ऊपर पड़ रही है तो बाद में वो डिफ्लेक्शन जरूर शो करेगी, वो कहाँ से किधर को जा रही है। ओके सर। हाँ जी जसकीरत, थैंक यू। वेलकम बेटा वेलकम। यस जसकीरत प्लीज अनम्यूट फर्स्ट। बेटा अनम्यूट तो करो। सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि उसने गोल्ड फॉइल इसलिए यूज किया, रिएक्टिविटी का कुछ लिख सकते हैं गोल्ड फॉइल की? नहीं, गोल्ड फॉइल तो रिएक्टिव ही नहीं होता सर। यस ये लिख सकते हैं कि लेस रिएक्टिव हो सकता है। नहीं बेटा वो तो चलो बाद की बात है कि अगर हम लोग मेटल्स या नॉन मेटल की बात करते हैं, लेकिन इस समय जो है हम लोग सिंपल उसकी मॉडल की बात कर रहे हैं। हम लोग उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जो उसने बोल दिया हम लोग उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसी की बात करेंगे।
ठीक है, जब आपके ये तीनों मॉडल्स खत्म हो जाते हैं, इन मॉडल्स के बाद जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसमें चेंज कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। मॉडल जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। हाँ यस बेटा, रुद्र त्रेहान। सर मैंने कहना था कि मैंने आपको सेंड किया था कि मेरे को डाउट है कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत है। मैंने आपका इसलिए नाम, सेंड किया आपकी ईमेल एड्रेस था अनुदीप त्रेहान। सर यस सर, पर मैंने वो गूगल फॉर्म से नहीं सेंड किया था, मैंने वो क्लास इंचार्ज को सेंड किया था अपना पेपर। अच्छा, क्लास इंचार्ज को, चलो मैं फिर चेक कर लूँगा दोबारा से। आपने मुझे ईमेल एड्रेस भेजा तभी मैंने वहाँ ढूंढा ना, चलो मैं फिर से देखता हूँ, मैं देख लूँगा। सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे सेंड किया था। हाँ तो मेरे पास होगा, लेकिन मैं आपको ढूंढ रहा था गूगल पे, गूगल फॉर्म पे। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी। हाँ जी रुपुर। Sir, I didn't submitted my paper through form. I sent you PDF file, so I'll be getting marks how? You better, you will get the marks on WhatsApp. Okay, thank you sir. हाँ, मुझे बस एक मैसेज करना है कि मैंने ये पेपर ऐसे भेजा था, तभी कुछ फाइनलाइज होगा, क्योंकि मैं आपको वहाँ ढूंढता रहूँगा गूगल फॉर्म पे, फिर आप वहाँ मिलोगे नहीं। हाँ, जिसने प्लीज़ व्हाट्सएप किया होगा तो प्लीज़ व्हाट्सएप का मैसेज वहाँ पे जरूर डालना कि मैंने मैसेज वहाँ पे ऐसे किया है। हाँ जी अक्षरप्रीत। Sir, one question I had was which subatomic particle is not present in an ordinary hydrogen atom? हाँ तो बताओ कौन सा नहीं होता ऑर्डिनरी में? अभी जहाँ पे आपका, पता नहीं। रुक जाओ, आपको सब पता है, आपको सब पता है बेटा। अच्छा अभी देखो, जैसे आपको पता है कि हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर? सर 3। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? सर 1। और इसका मास नंबर कितना होता है जनरल वाले का? सर जनरली 2 लेते हैं, 1 लेते हैं सर। 1 लेते हैं, 1। अब निकालो इसमें कितने प्रोटॉन है? सर हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक मास नंबर, और ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो 1 प्रोटॉन एंड 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। निकालो फिर न्यूट्रॉन कितने आए? सर न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस भूल गए सब कुछ, पेपर अभी तो बच्चा फिर से होने वाले 10 दिन बाद। मास नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। निकालो, मुझे बताओ कितना आता है, फिर देखो क्या चीज नहीं होती वहां पे, मुझे बताना अभी। यस आस्था बोलो बेटा। Sir, neutron is absent in hydrogen. हाँ यस, न्यूट्रॉन इज एब्सेंट। देखो बेटा जो आपके, हाँ बोलो। Sir, because जैसे कि हमने पढ़ा है कि मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू डैश प्लस 1, तो 0, या न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 0। हाँ तो सिंपल इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है अक्षरप्रीत? हाँ तो इसमें आपका न्यूट्रॉन जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब उसने जर्नल शबनम एंड वंशिका गुप्ता, शबनम मुझे मत करना, मैं रिमूव कर दिया आपको। ओके ठीक है, हाँ यस प्लीज स्टे दिया। नेक्स्ट बेटा कम टू द कशिश। 9F। कशिश आर यू हियर मी? नहीं। हाँ जी शबनम। ओके शबनम मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर आई डोंट नो। ओके यस बेटा, चंद्रप्रीत कौर 9F। ओके गुरमन आ रहा हूं। चंद्रप्रीत कौर नहीं, चलो एनी हाउ। नेक्स्ट कम टू द तजेश्वर मनहास। तजेश्वर बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ जी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Sir, electric configuration of an atom is the number of electrons that it requires to be stable.
ओके, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी बेटा, जशनप्रीत सिंह, जशनप्रीत, प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तजेश्वर कुछ ठीक था? तजेश्वर प्लीज स्टे देयर। हाँ जी बोलो जशन। Sir, I don't know. ओके, तारुष जैन, तारुष, तारुष जैन 9G। हाँ जी बेटा प्लीज अनम्यूट। नो बेटा अनम्यूट करो पहले अपने आप को। यू डोंट नो? ओके, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो था नहीं यार। हाँ जी एकनूर सिंह 9C, एकनूर सिंह। Sir, electronic configuration refers to how electrons are distributed in the energy shells. थोड़ा सा मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक नेटवर्क इशू है आपका। चलो नो प्रॉब्लम। तो बेटा इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अभी देखो यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने अभी इस बार आपको पेपर्स में भी डाले हुए थे कि वाई नोबल गैसेज आर नोन एज इनर्ट। ये मैंने शायद पहले भी कहीं किया डिस्कशन, तो लेट अस डिस्कस वंस मोर टाइम। जस्ट वाणी आनंद 9G, प्लीज अनम्यूट फर्स्ट। अनम्यूट नहीं बेटा हो रहा, अब देखो प्लीज अनम्यूट। हाँ यस Yes, sir. हाँ जी बेटा, वाई नोबल गैसेज आर नोन एज इनर्ट, INERT। Noble gases are known as inert. यस Noble gases are known as inert. I don't know. ओके नो प्रॉब्लम। हाँ जी रेवा, रेवा से करते हैं बात। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, first reason can be that they do not react with any element, and second reason can be that their octet is complete of neon and argon, and their valency is 0. ओके बेटा, why their valence is 0? Sir, because their outermost shell is fulfilled. हाँ देखो बेटा, जो नोबल गैसेज होती हैं, जैसे आप लोगों ने नियोन का किया होगा, उसका आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते भी 2 ही हैं, फुल फिल्ड है। एंड कम टू द नियोन, वहाँ पे 2 और 8 बनते हैं। नेक्स्ट कम टू द आर्गन, दैट इज 2 8 एंड 8, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो नोबल गैसेज हैं उनका आउटरमोस्ट शेल ऑलवेज फुल फिल्ड आता है। जब उनका आउटरमोस्ट शेल ऑलवेज फुल फिल्ड आएगा, मतलब पहले से वो भरे हुए हैं, तो वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते। And if they do not react with any element या with any compound, so that's why they are known as inert. Inert के स्पेलिंग है INERT। तो एक ही बात है, इसमें आप लोगों ने ऑक्टेट वर्ड का यूज नहीं करना है कि ऑक्टेट विल बी कंप्लीट। वाई यू आर नॉट यूजिंग ऑक्टेट, अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं किसी से। हाँ जी बेटा वंशिका गुप्ता 9G। Yes, sir. Why helium is non-reactive? Anupur, I am coming. Sir, can you repeat? Sorry. Why helium is non-reactive? Sir, because its outermost shell 2, it is of first cell, so it's 2. It contains 2 electrons, so it is fulfilled. Can you please tell the name of noble gases? Few names. So helium, argon, and helium, argon, neon. Neon, yes, neon. हाँ जी बेटा नुपुर शर्मा। हाँ जी बेटा।
Sir, you asked that why will we not be using the term octet? It's because the helium gas, it goes through the duplet rule. That means its valence shell is having only 2 electrons. Okay. That's why we will not be using term octet. Okay. Because sometimes it's duplet. Right. Acha, next come to the Asta. Beta, please unmute first. Yes, sir. Beta, how will you differentiate proton, electron, and neutron? So the protons refer to the positively charged subatomic particles in an element, and electrons refer to the negatively charged, and the neutrons are the neutrally charged subatomic particles. Right. And any other difference? So right now only this. Okay, no problem. हाँ जी बेटा जसकीरत. So we can explain the masses. Sir, the mass of electron is 1 by 1840 times of that of the electron, and the mass of proton 1 by 1840 times that of electron, and the mass of proton is positive. Mass of electron is 1840 times that of electron. Okay. And mass of neutron is, yes Right. sir. ठीक है. हाँ जी तरनप्रीत कौर. So another difference can be that protons, they lie inside the nucleus. Neutrons also lie inside the nucleus, and electrons are outside the nucleus. Okay. अच्छा, अभी इसके बाद आता है आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप और आइसोबार. अभी नेक्स्ट वी विल टॉक टू यस बेटा मनजोत सिंह. मनजोत, प्लीज अनम्यूट फर्स्ट. मनजोत सिंह सैनी. आई थिंक नेटवर्क इशू है इनका कोई. चलो गुरमन, हाँ बताओ फिर. गुरमन सिंह 9A. हाँ बेटा, बट एक मिनट, मेरा क्वेश्चन शुरू होने तो पहले एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बेटा? What do you mean by atomic numbers? Atomic number means the place in which it is placed in the periodic table. फिर से बोलो. Or sir, the number of Can you please repeat electrons. once? Can you please repeat once? What do you mean by atomic number? Define करना है इसको. The number of protons or the number of electrons present in any atom is equal to the atomic number. नहीं, थोड़ी सी इसमें कुछ प्रॉब्लम है. यस एक नूर बेटा 9C. आप बताओ बेटा, इसमें क्या कुछ गलत है? The number of protons in a nucleus of an atom. In the Beta, nucleus of an atom. it is the number of proton present in the nucleus of an atom is known as atomic numbers. ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है. अच्छा, नेक्स्ट कम टू द युवराज 9B. Yes sir. मास नंबर बेटा? Sir, it is sum of number of proton and electron in the atom. एक बार फिर से रिपीट कर दो. आई थिंक कुछ गलत बोल रहे हो. Sir, it is the sum of number of proton and neutron present in an atom. It is the number of proton and neutron. ठीक है. हाँ जी, तरनप्रीत कौर. तरनप्रीत प्लीज 9B. तरनप्रीत का आई थिंक नेटवर्क इशू आ गया है. यस वाणी आनंद. वाणी के बाद नूपुर. गेट रेडी. हाँ जी. Yes sir. Vani, please tell me, if suppose 7 atomic number is given and mass number is 15, then how will you represent it symbolically? So first of all, we should know the name of the element. Suppose which element is is X. मान लो element X है. And the mass number, that is 15, would be at the top,
and the On the left hand atomic side or number. right hand side? So left hand side. And then? And then atomic number, that is 7, would be at the bottom in the left hand side. Okay, thank you beta. हाँ जी नूपुर शर्मा 9 जी. Yes sir. हाँ जी बेटा, how will you differentiate between isotope and isobar? Sir, isotopes are the elements which have same atomic number but different atomic masses, whereas isobars are the elements with different atomic numbers but same atomic masses. Okay. Manveet Kaur 9B. Manveet, please beta unmute yourself. जो हमने अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग करना है. चलो ठीक है, अच्छा यहाँ पे. हाँ जी करणबीर कौर 9E. Yes sir. हाँ बेटा करणबीर, मुझे बताओ कि what are the application of isotopes? So isotopes are used as fuel in nuclear reactors, and Which isotope of cobalt, it is isotope used of in which one? treatment of. पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की बात खत्म करो. So isotope of uranium is used as fuel in reactors, in nuclear reactors. Isotope of cobalt is used to treat cancer, and isotope of iodine is used in treatment of a disease, Goitre. गाइटर बेटा, गाइटर होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट कम टू द तरनप्रीत. पहले भी मैंने आपसे कुछ पूछना था, आपका नेटवर्क चला गया. Yes sir. बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी डिफाइन करो पहले एटॉमिक नंबर को. डिफाइन एटॉमिक नंबर. The total number of protons in an atom is atomic number. And mass number? Atom is called mass number. ठीक है. And isotope? Isotopes have same atomic number and different mass numbers. ठीक है बेटा. तो अभी देखो आपका ये चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा रिवाइज हो चुका है. तो इसका बेटा अभी जो मैंने आपका नेक्स्ट लेसन होगा उसमें मैं आपका टेस्ट लूँगा और फिर आपने उस टेस्ट को बना करके मेरी मेल पे सेंड करना है, व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना. आपकी मेल होगी सभी की आई थिंक. अगर किसी का ईमेल एड्रेस नहीं तो मुझे बता दो. अभी सभी का ईमेल एड्रेस है? हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे कई बार हो सकता है गुम हो जाता है कई बार, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भी इस बच्चे ने मुझे ये भेजा. ठीक है, मैं आपको ईमेल एड्रेस आपको सेंड कर दूंगा ऑन दैट टाइम और आपको क्वेश्चन पेपर यहीं पे डाल दूंगा. लेकिन बस रिक्वेस्ट एक ही है कि आपने अपना जो एग्ज़ाम है वो ईमानदारी से देना है. ठीक है, बेशक मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ या पेरेंट्स आपके सामने हैं, जो भी हैं, आपने उस टेस्ट को ईमानदारी से देना है. बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी. जितना आता होगा कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि सभी के 20 और 20 आ जाएं, लेकिन अगर ईमानदारी से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ईमानदारी से सबके 20 और 20 आए या 10 और 20 आए तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम, लेकिन हाँ मुझे पता चले कि कौन कितने पानी में है. पानी में है भी, ये सभी सूखे में खड़े हैं, कोई पता नहीं मुझे अभी. ठीक है, तो योर रिक्वेस्टेड टू. अभी नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा, इसी चैप्टर का होगा, मैंने आपको आज ही बता दिया, और जूम के ऊपर ही होगा. और आपने मुझे वो PDF बना करके या जैसे भी जो पेजेस हैं जैसे आप उसको ईमेल पे सेंड करने हैं. पेपर आपको इसी समय यहाँ पे मिल जाएगा एट जो भी आपका टाइमिंग होगी. बट सेंड कहाँ करोगे? ईमेल के ऊपर. पजल बिल्कुल मत होना, कोई बात नहीं, 10 मिनट फालतू लग रहे हैं, कोई बात नहीं, लगा लो. अगर किसी के अभी भी नंबर नहीं मिले हैं तो हाइपर मत होना, सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखना. ठीक है. हाँ जी वंशिका. सर आप टेस्ट गूगल फॉर्म पे लोगे या? नहीं बेटा, मैं यहीं पे डाल दूंगा PDF. यहाँ पे नहीं खुलेगी तो मैं आपको फ़ोन पे भी सेंड कर दूंगा. फ़ोन पे सेंड नहीं करूँगा तो मैं ऐसे किसी ना किसी तरीके से आपको भेज दूंगा. ठीक है. अगर वैसे मैं गूगल फॉर्म पे लेता हूँ, लेकिन फिर आपने उसको बना करके लिख करके, अगर मैं मान लो गूगल फॉर्म पे भेजता हूँ तो आपने उसको बना करके अपलोड कर देना, नहीं होता है तो ईमेल कर देना. इतना ध्यान रखना. ठीक है. वैसे मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पर टेस्ट लूँ सामने ही. हाँ जी बेटा. प्रगति.
हाँ जी, कुछ नहीं। हाँ जी तरन बेटा। Sir, test will be objective or subjective? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। Okay, sir. ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच बेटा, हैव अ नाइस डे।